جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہمارے منسٹر اپنا فشریز اور لائف سٹاک محمد علی ملکانی صاحب نے یہ 3 دن کا ایکسپو جو ہے اپنا وہ شروع ہو رہا ہے کراچی ایکسپو میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ 2 دن کولیبریشن کیا ہے، جو ان کے پوری سندھ سے جتنے بھی مویشی آپ دیکھیں کہ سندھ میں بہت بڑا سیلابوں کے بعد ایک قید سالی آئی ان میں لائف سٹاک میں، اس کے بعد کافی ٹائم سے کوئی ایونٹ نہیں ہوا. تو ایک تو ہم جتنے بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ادھر آئیں گے اور ایک روف کے انڈر سارا لائف سٹاک ہوگا، تو یہ سندھ کے لوگوں کو ایک بہت بڑا مواقع ملے گا یہاں پہ آ کے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا. اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی یہاں سے کافی میٹ ایکسپورٹرز ہیں یا کافی ڈیری کا کام ہوتا ہے، تو یہاں پہ لوگوں کو ایک سہولت ہوگی. تو کلچر ڈپارٹمنٹ کا اس میں یہ انپٹ ہے کہ 2 دن میوزک فیسٹیول ہوگا، اس کے بعد کلچرل کوشش کریں گے ایکٹیویٹیاں زیادہ ہوں یہاں پہ. تو اسی حوالے سے ہم نے میٹنگ کی ہے جہاں پہ منسٹر صاحب اپنا لائف سٹاک اور فشریز کے تھے، سیکٹری ایگریکلچر تھے، سیکٹری فشریز اور لائف سٹاک تھے، سیکٹری کلچر اور سیکٹری اسپورٹس یہاں پہ. تو اسپورٹس کی بھی ایکٹیویٹیاں ہیں، زیادہ آپ کو منسٹر اپنا لائف سٹاک ہی بتا سکیں گے اور کیا ایکٹیویٹیاں انہوں نے رکھی ہیں. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں رکھنا پورے پاکستان کا ہارٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک سے لوگوں کو آنا چاہیے اس جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے، جو ایکسپو ہو رہا ہے، اس میں آ کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے پروگرامز بھی رکھے ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور اس میں کافی ان کی جو جانوروں میں بیماریاں آتی ہیں اس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند عمل ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کی مہربانی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے. میں شاہ صاحب کا اور باقی سب لوگوں کا مشکور ہوں. یہ ہمارا تیسرا ایونٹ ہے جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کراچی میں کریں، کیونکہ کراچی بزنس ہب ہے اور کراچی سندھ کا کیپٹل ہے. یہ جو ہمارے اس میں ڈالفا کے ساتھ اور ہمارے جو بریڈر ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہوا ہے تاکہ کراچی کے لوگ بھی دیکھ سکیں کہ اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. فیوچر جو ہے وہ لائف سٹاک کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لائف سٹاک کی ہماری جی ڈی پی میں کتنی کنٹریبیوشن ہے، اور ہم سب سے زیادہ ایگریکلچر میں اگر ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہے تو ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن کے اس کی لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں منسٹر ایگریکلچر اور منسٹر کلچر ٹورزم کا مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، میئر کراچی کا اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن کا. اس میں ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیو آ رہے ہیں، پنجاب کے منسٹر لائف سٹاک آ رہے ہیں، بلوچستان کے منسٹر لائف سٹاک آ رہے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی ہمارے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں. اس میں بیسیکلی ہوگا اس طرح سے کہ ہم لوگوں کو جو ہمارے فارمرز آ رہے ہیں جو بریڈنگ پہ کام کرتے ہیں، اچھے جانوروں کی جو وہ کرتے ہیں، ایک وہ ہوں گے اور دوسرے میٹ والے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگوں نے میٹ کے جانور تو دیکھے ہیں لیکن بریڈنگ والے نہیں دیکھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ دیکھیں گے، اور اس میں ہمارے باقی مختلف یونیورسٹی سے لوگ آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ بھائی اس میں آپ کس طرح سے انوائرمنٹ کے جو کنٹرول شیڈ ہیں وہ اینیملز کا کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور باقی جانورز کی جو پرورش ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور اچھے ملکنگ. کیونکہ اب دور ہے کمپٹیشن کا، ہمیں جو ہے وہ پروڈکشن پہ زور دینا ہوتا ہے، ہم پاپولیشن پہ نہیں. ہم چاہیں گے کہ جانور اگر کم ہوں لیکن ان کی پروڈکشن زیادہ ہو. تو یہاں پہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے. اور وہاں پہ ہم نے یہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایم اوز یوز اگر سائن کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے ساتھ، ڈالفا کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے منسٹری کلچر کے سہکار کے ساتھ وہاں پہ ایک ہم نے 2 رات دن جو ہے وہ ان کے شو بھی ہوں گے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو ہم چاہیں گے کہ کراچی کے لوگوں کو ہم ایک انوائرمنٹ بھی دے سکیں تاکہ یہ جو فرسٹریشن کا ماحول ہے اس سے نکل سکیں. آپ سب کی بڑی مہربانی. میں آپ کو ہم نے دعوت دی بھی ہوئی ہے اور پھر بھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کی انوگریشن کریں گے، اور باقی بھی جو ہمارے پروگرام ہیں 3 دن ہمارے پروگرام چلیں گے. تو آپ کو میڈیا کے سب دوستوں کو آپ کے توسط سے میں کراچی کے سب شہروں کو دعوت دوں گا کہ اس میں ضرور شریک کریں. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ
हमारे जानवर हैं वो तो गांव देहात में होते हैं, उनको इधर लाने के लिए जो भागे हैं हमारे, उनका कुछ बंदोबस्त है, कोई स्टाल लगेंगे, क्या होगा ये बताइए। बिल्कुल वो सारे होंगे और हमने उनको वहाँ से पिक ड्रॉप की फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको हमने फैसिलिटेट किया है, उनके रहने का, खाने का, सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया, जानवरों का, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। अच्छा सर, कौन कौन से जानवर इस नुमाइश के लिए आप लोगों ने चूज, क्योंकि मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ नस्लें हैं, तो वो किस तरह उनको मैनेज करेंगे, कितनी तादाद होगी, और उसके अलावा जो है ये टोटल सिंध गवर्नमेंट कर रही है या कोई इसमें किसी और का देखें, contribution जो भी है? ब्रीडिंग वाले हैं वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है और जो अपना फैटनिंग वाले हैं वो डाल्फा वाले कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यह है कि हर ब्रीड के जो है वो उसमें जानवर हों। अच्छा कल्चर मिनिस्टर साहब, उधर जो ये जो होगा वहाँ पर आपका जो शो होगा, उसमें आप फनकार कहाँ से ला रहे हैं, कराची के होंगे या बाहर के भी होंगे? बस वहाँ फनकार ये होंगे, कराची के भी होंगे, कुछ बाहर के होंगे, सनम मारवी साहिबा होंगी, उसके बाद जैसे लोकल फ़नकार हैं, कुछ उर्दू स्पीकिंग यहाँ से फ़नकार हैं, हमारे लोकल जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लोकल फ़नकारों को प्रमोट करें, क्योंकि उनको सुना भी बहुत ज़्यादा जाता है। और सिंध आपको पता है कि सूफ़ी इकराम की धरती है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा। शाह साहब, ये शोर से जो है वो जानवर भागते हैं, आप वहाँ पर म्यूजिक करके जानवर तो भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं, जानवर बिल्कुल नहीं। वहाँ पर दूर धकेड़ा वाला ऐसे नहीं कि जानवर भाग। हमने नहीं, वो नहीं, प्रोग्राम थोड़ा दूर रखा है। हाँ, जो पोल्ट्री की धरन है वो जबान पजीर है, उसमें जदीद टेक्निक के हवाले से आपका जो महकमा है वो क्या इकदाम उठा रही है, उसके साथ साथ जो माहौलियाती तब्दीली है उसके भी बहुत नुमाया असरात है पोल्ट्री सेक्टर बशमूल लाइफ ब्रीडिंग पे, इसके हवाले से आपको उनको किस तरह से प्रोत्साहित करें? देखें, इसमें जो हमारे जर्मनी से आ रहे हैं एक दोस्त, दो चार, हाँ प्रोफेसर हैं, वो आ रहे हैं और हम इस पे क्लाइमेट पे भी लेक्चर्स होंगे। ये हमारे 3 जो सेशन चलेंगे उसमें लेक्चर्स भी होंगे कि हम क्लाइमेट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और ब्रीडिंग को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो फीडिंग की कंपनियां हैं वो होंगी, एग्रीकल्चर के बाकी लोग होंगे। जैसे आपने पोल्ट्री का कहा, तो पोल्ट्री में प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, लेकिन डिपार्टमेंट भी कर रही है, लेकिन उसमें भी प्राइवेट लोगों का बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव है, या प्राइवेट लोग अब उसमें इतने आ गए हैं कि मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट उसमें ज़रूर कोशिश करें, लेकिन प्राइवेट हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन कराची में ही सालाना बुनियादों पे 1 लाख बच्चे यानी जो गाय भैंसों के हैं वो कटते हैं, तो और उसके अलावा भी आप जाएँ तो ये बहुत बड़ा प्रोलिफरेट कर रहा है कि बजाय बकरे के आजकल ये ट्रेंड कराची में चल रहा है कि बकरियां वो ज़िबा करके बकरे के रेट पे बेची जा रही है, जो कि यकीनन ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है कि आप जो फीमेल है उसको पूरी तरह से जो है वो ज़िबा करें। तो आप ये बताएं कि ये बहरहाल इनिशिएटिव बहुत ही वेलकमिंग है, लेकिन आप उस हवाले से क्या कर रहे हैं? लेकिन आपकी हुकूमत कानूनी तौर पे तो हम किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई आप उसको नहीं करते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे बैंस कॉलोनी में पहले था हमारा एक प्रोजेक्ट जायका के तावन से, जापान के तावन से चल रहा था, अभी फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ताकि बछड़े ख़रीद करके हम अपने फार्मर्स को दें, लेकिन वो छोटी लेवल पे हो रहा है। अभी हम इसमें ही लोगों को कहेंगे ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और जो भैंस 5 लाख 7 लाख रुपए की होती है, उसका जो बच्चा होता है वो 2 दिन के बाद काट देते हैं। अगर वो बच्चा फीमेल हो तो वो फिर 2-3 साल के बाद वो 5-6 लाख की प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोगों को ये चीज़ें ज़रूर समझाएंगे कि आप इनको ख़रीदें और उनको पाल कर। नहीं, बच्चे वो ज़बा करें नहीं, आपने फ़ीमेल का कहा था, बकरियां फ़ीमेल की आपने बात की, मैं उसके लिए कह रहा था। ये बताइए कि सिंध में इस एक्सपो पे आप कितने रकम खर्च करने जा रहे हो? माजी में भी हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में इस किस्म की एक्सपो आप करा चुके हैं, आपका महकमा, और कितना उससे फीडबैक आया है, कितना फ़ायदा सिंध के लाइफ स्टॉक को हुआ है? आप बाहर से ड्रोन भी ले आते हैं, बड़े बड़े इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो तो यहाँ मर जाते हैं। फ़ायदा क्या हुआ है सिंध के फार्मर्स को आपके डिपार्टमेंट से, सिवाय 1 अरब के चारे के पैसे निकलवा लिए, उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ है आपके डिपार्टमेंट? सर सिंध के लाइफ स्टॉक मैं एक अर्ज़ कर दूं, एक तो पिछले जो 2 एक्सपो हुए हैं उससे ये कम पैसों पे हो रहा है। बता दें रकम ज़रा। मेरे ख्याल में ये 120 मिलियन है शायद।
120 मिलियन में ये हो रहा है तकरीबन, और पिछले जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा पे हुए थे। अभी हमने कमेटी को बताया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं। एक्सपो का मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए ताकि भाई ये आप कारोबार कर सकते हैं, ये आप ब्रीड रख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अच्छी ब्रीड है तो लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये ब्रीड भी है। काफ़ी ऐसी ब्रीड हैं जो ये कराची के लोग जब कल इंशाल्लाह यहाँ पे शुरू होगा तो ख़ुद आप उन लोगों से फीडबैक लेंगे कि भाई उन लोगों ने कभी देखे भी नहीं थे कि इस तरह की कोई बकरियाँ भी होती है, इस तरह की कोई गायें भी होती है, इस तरह की कोई भैंसें भी होती है कि इतना दूध दे रही होती है। तो लोगों को जब पता चलेगा तो फिर लोग उस कारोबार की तरफ होंगे। और दुनिया में इस तरह के ये बेसिकली एक मार्केटिंग की बात है। हम लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि आप इस तरह से ये जानवर पाल सकते हैं और इस तरह से आप कारोबार कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो फेडनिंग का कोई जिक्र भी नहीं था कि भाई इस तरह से कोई फेडनिंग होती है। तो ये आइडियाज़ हैं और वहाँ से लोग सीखते हैं। लेकिन सर, जिस तरह आप ये जिक्र कर रहे हैं कितना खर्चा होता है और ब्रीड को आप जो है वो पॉपुलर करना चाहते हैं, तो हमारी भी क्या ब्रीड्स हैं जिनको आपने डेवलप किया है? तो लोग ज़्यादातर तो ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन काऊ आती है, उसका दूध ज़्यादा होता है। तो हमारे पास इस तरह कौन सी स्पेशल नहीं, देखें हमारी, मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियन ज़रूर है लेकिन वो यहाँ के लिए इतनी नहीं है जितनी हमारी रेड सिंधी है या बाकी जितने हमारे, मैं रेड सिंधी कह रहा हूँ। रेड सिंधी जो है वो आज जिन लोगों ने उनको बेहतर तरीके से किया है तो वो अभी मेरे ख्याल में 20 लीटर तक आ गई है। तो रेड सिंधी आम नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो रेड सिंधी जो है वो 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं होती उसकी पोटेंशियल। तो ये चीज़ें वक्त के साथ बेहतर हो रही हैं। कितने के जानवर हैं सिंध के लाइफ स्टॉक में तो अंदाजा लगाया कि जानवरों की कमी तो नहीं हो रही जो जिस तरीके से ये बाहर भी मीट जा रहा है? नहीं, जानवर्स की नहीं हो रही। देखें, अगर एक फार्मर है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो बाहर अभी लाइव एनिमल नहीं जा रहे हैं लेकिन आपका मीट जा रहा है, लोगों को अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो फिर लोग ज़ाहिर है एक्सपोर्ट की जब तक अलाउ नहीं होगा तो फिर लोग फार्मर नहीं पालेंगे जानवर्स को। अब ज़ाहिर है इस तरह से अगर जानवर्स की डिमांड होगी तो फिर लोग और भी आएंगे। अभी कराची के कितने लोग जो हैं इस कारोबार में आए हुए। सर ये 1200 एकड़ की है, 55 एकड़ की नहीं है, 1200। हाँ, ये मैं अर्ज़ करूँ, ये 1200 एकड़ की है और आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले ये स्कीम इनिशिएट हुई थी। वहाँ पे उसके ऊपर एक नेब की इंक्वायरी चल रही है तो इस वजह से वो रुकी हुई है। जब वो इंक्वायरी फाइनलाइज होगी और जिन जिन लोगों ने अगर उसमें कुछ किया है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी।